Students, today we will discuss about the question of 13.2 exercise. All you know very well about the conditional probability that we have discussed. Thereafter we will discuss about the events that are independent, that are mutually exclusive, that are mutually exhaustive. So such kind of event is to be expressed in a different manner. Now we will take today some of the question related to the exercise 13.2. The question is the two cards of question number 2 of exercise. There is two cards are drawn at random. Two cards are drawn at random. Two cards are drawn at random विदाउट रिप्लेसमेंट. देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली ध्यान रखनी है. विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है. फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक. फाइंड द probability that both the cards are black. This is the question. Two cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are black. How many cards we draw at random? That is 2, but without replacement there are two words. One is with replacement, and another is without replacement. ठीक है. Without replacement का meaning है, whatever is the meaning, whenever the card 1 is to be drawn, that should be not mixed with these 52 cards deck. Meaning whenever the card 1 is to be drawn, that should be kept alone from the deck of 51 cards, right? Clear? Or with replacement meaning whatever is drawn, that should be again mixed with the deck. So the complete cards are again 52. In case of with replacement, without replacement, that should be placed aside. Now come on question. Both the things is clear in all of the mind. Without replacement, with replacement. The card of pack is to be 52 cards. Find the probability that the cards are black. Multiplication theorem. The cards are, both the cards are black. So probability for getting the first black card. Black cards are out of 52. There are 26 black cards. Over 52 to getting the first black card. And the second card, whenever first is to be not replaced into the deck, then the second of black out of 25, out of 51. This is the probability on getting 26 card of black out of 52. Thereafter one black is to be removed outside. The remaining black are 25 out of 51. The probability is described like that, 1 by 2. Then the answer is 25 over 102. That is the answer of this question. This is the multiplication theorem. One card we have drawn, the probability of another card, that is black, whenever one is to be drawn. Two black card की probability आप define कर रहे हो B1 B2 की. It means the probability of B1 multiplied by probability of B2 whenever B1 has already occurred. So this is the probability which is known as multiplication theorem or conditional probability. Both of them are same. Question 2, everybody is clear? Now come on next question. Question number 4 or maybe 3, whatever it is, no issues. The 4 we are taking the fair coin and unbiased dice. Fair coin and unbiased dice. Unbiased dice. Fair coin meaning exactly the coin whatever is look like.
दैट इज द फेयर हेड टेल। बट अनबायस और बायस, अनबायस का मीनिंग फेयर डायस और बायस मीनिंग चीटेड डायस। अनबायस का मीनिंग फेयर कॉइन, फेयर डायस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, लेट ए बी द इवेंट, कैपिटल ए बी द इवेंट दैट इज हैड अपीयर ऑन द कॉइन, हैड अपीयर ऑन coin, and capital B is the event 3 on the dice, 3 on the dice, 3 on the dice. Check whether A and B are independent or not. ठीक है, तो हमें कहा फेयर कोइन एंड बायस आर टॉस। ए में कहा हेड अपीयर ऑन द कोइन, कोइन में आपके पास दो ही आउटकम है, हेड एंड टेल, और यहाँ हेड अपीयर ऑन द, तो इसमें केवल कोइन के दो आउटकम थे। आउट ऑफ दिस टू आउटकम इन इवेंट ए देर आर टू आउटकम्स, हेड एंड टेल। इन इवेंट ए द आउटकम इज ओनली हेड। 3 comes on the dais, the dais is clear, the outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of these, the outcomes come in event that is only 3 on the dais. The probability of event A that is 1 by 2 and the probability of event B that is 1 by 6 out of 6 outcome, and the intersection between both of them that is nothing, A intersection B that is nothing phi, or we can say intersection probability that is 0 again. तो यहाँ पर कहा गया फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड आर टॉस, इवन हेड अपीयर ऑन द कॉइन एंड बी इवेंट ऑन द, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब आप इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी दैट वी हैव डिस्कस दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ पी ए इनटू पी बी। द प्रोडक्ट ऑफ पी ए एंड पी बी दैट इज 1/12, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 0, बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, सो द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A dice mark, question number 5, a dice mark 1, 2, 3 रेड कलर में मार्क किए हुए हैं, 4, 5, 6 इनका कलर है ग्रीन। टॉस कर दिया, डायस पे मार्किंग है 1, 2, 3 दैट इज टू बी इन द कलर रेड, वेयर एज 4, 5, 6 दैट इज इन द कलर ऑफ ग्रीन। नाउ ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, A be the event the number is even, and B be the event the number is red, the number is red। तो अगर हम बात करें द नंबर इज इवन इन इवेंट ए विच कम्स, इवेंट ए में आपने कहा इवन नंबर कौन आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, और बी में आपने कहा द नंबर इज रेड, रेड में नंबर कौन है 1, 2, 3। नाउ कॉमन इन ए एंड बी दैट इज 2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज डिस्क्राइब 3/6, and the probability of B that is again 3/6, and the probability of A intersection B that is 1/6. Now the events are independent or not, so we will check by the formula. Independence is to be checking by like that, so we will check it. Left part we have calculated, right part now we will calculate 3/6, 3/6, then 1/2, 1/2, product is 1/4 which is not equivalent to the A intersection B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट।
इन क्वेश्चन 4 हमने कहा हेड अपीयर ऑन द कॉइन, बी इज द इवेंट, 3 ऑन द डायस. Now come on. क्वेश्चन नंबर 6. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बट इट्स इजी टू सॉल्व, नो एनी प्रॉब्लम. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज अगेन question number 7. That is the interesting question. So solve now. A and B are event and probability of A is given, that is 1/2, and the probability of A union B, that is given 3/5, and the probability of event B, that is given P. और कहा गया इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी. अगर इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो आपने कहा था ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0, इन केस इफ इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. राइट है. तो अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर आ जाए तो क्या करें हम, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो हम सेट से भी स्टडी करके आते हैं, दैट विल बी रिटन इन फॉर्म ऑफ लाइक दैट. नाउ फ्रॉम वेयर वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज पी माइनस. और इन्होंने कहा दिस इज द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो हमें इसको यूटिलाइज करना है यहाँ पर. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, दैट इज दिस, फ्रॉम वेयर टेकिंग एलसीएम 10 एंड द 6 माइनस ऑफ 5, दैट इज द 1/10. तो पी कितना आ गया, 1/10 व्हेन एवर इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. नाउ द केस इज द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. जब इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी. राइट है. अब इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना होगा, इंडिपेंडेंट है तो बोथ द थिंग्स आर राइट. यहाँ से इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे आप, वो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी. तो सॉर्ट आउट इट, 3/5 plus PB, PB is P minus PA union B, that is 3/5. This is the A union B is 3/5 and PA is a 1/2. Substitute here 1/2. इसको सिंप्लीफाइड कर लें, इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ रख दें, PA PB की वैल्यू आपके पास में यहाँ प्लेस कर देंगे. तो आप कैलकुलेट कर लें व्हाट इज द P इन केस. ठीक है, कोई दिक्कत. इंटरसेक्शन अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो दोनों चीज़ें इक्वल होगी. यहाँ से हमने इंटरसेक्शन पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, इसको आप यहाँ प्लेस कर देंगे. 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 इक्वल पी ए कितना आ रहा है 1/2 और पी बी कितना आ रहा है इंटू पी. राइट है. अब P का कंटेंट एक तरफ, या तो आप इसको इधर मूव कर लें, इन दोनों को उधर ले जाएं, तो P माइनस हाफ ऑफ P इक्वल, ये 3/5 प्लस का हो गया, ये हाफ माइनस का हो गया. यहाँ हाफ ऑफ P बच गया, यहाँ 10 एलसीएम ले लेंगे, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 1/10 हो गया और P कितना हो गया 1/5. केस नंबर 2 में आप इस कैलकुलेशन को आप चेक कर लें और इस P की वैल्यू कैलकुलेट कर ले. ठीक है, समझ में आ गया सबको. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नंबर 8 is direct question on basis of the concept that we have delivered.
So properly solve it now. Question number 9, probability of A is given, probability of B is given, and the intersection probability is given neither A nor B. De Morgan's law I have already told, whenever the events are like that, it is to be known neither A nor B. Neither A nor B. Or by De Morgan's law, this is expressed like that, and which is expressed by whenever the नंबर. अब ये प्रोबेबिलिटी में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ए डैश एक्सप्रेस करना होता है तो 1 माइनस ए कर देते हैं, या टोटल से माइनस कर देंगे, जो भी होगा इसको लिखेंगे u माइनस एन ए यूनियन बी. अब प्रोबेबिलिटी में सेम कंसेप्ट इज देयर, डी मॉर्गन्स लॉ इज अप्लाइड देयर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश विच इज एक्सप्रेस 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और दिस इज इक्वलेंट 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी. नाउ 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, P intersection B, that is given in the question. So all three values are given 1 by 4 plus question number, we are discussing the question number 9 of exercise 13.2. 1 by 4, 1 by 2, 1 by 8. Solve it. On simplification you are getting the answer. There is LCM. कितना LCM आ गया, 8 ले लो, ठीक है. यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 1 आ गया. अगले रिजल्ट को यहाँ राइट कर लो, 1 माइनस ये कितना हो, 6 माइनस 1 5 बाई 8 हो गया. सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3 बाई 8 इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, नाइदर ए नॉर बी. ठीक है. सेम केसेस में आप 10, 11 करेंगे. फिर का डायस टॉस थ्राइस, dice is tossed thrice. Question number 12. A dice is tossed thrice. ठीक है. तो फिर बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1. डायस कितनी बार थ्रो किया, थ्राइस, मीनिंग है 3 बार. फिर कहा गया प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द probability getting an odd number at least once, at least once. डायस कितनी बार थ्रू किया गया, 3 टाइम्स. आउटकम कितने हो गए, 2 1 6. और उसमें कहा गया कि ऑड नंबर एट लीस्ट 1 वंस. तो पहले 3 डायस के आउटकम, तो मैंने आपको कहा था हमें 36 आउटकम हम लोग बना लेते हैं पहले 2 डायस के, और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं. देयर आफ्टर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बिकॉज द थिंग्स इज क्लियर इन योर माइंड हाउ द आउटकम ऑफ 3 डायस इज टू बी एक्सप्रेस. तो स्टूडेंट्स, now I have written the outcome of 2 dice on throwing 2 dice. What the exactly outcome you are getting, that is like this. These outcomes is this. Up question is that we are throwing 3 dice. 3 dice meaning this 11 is to be expressed by 1 2 3 4 5 6. Then this 12 is expressed by 1 2 3 4 5 6. Same, every number of these 2 dice throwing outcome is to be connected with 1 to 6. Then the number is having 6 outcome. One row horizontal, that is to be the total outcome are 36, and the 6 vertical rows are having 2 1 6 outcome. कैसे कैसे बने, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 like that. फिर ऐसे ही 1 2 1 1 2 2 1 2 3 ऐसे
फिर ये 1 1 पे 1 लगाया आपने, फिर 1 1 पे 2 लगाएंगे, फिर 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए। इस पे हुए 1 2 1 6 6, ऐसे हर किसी के आप आउटकम बनाएंगे। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ओड नंबर एटलीस्ट। ओड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए, मैक्सिमम 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो ओड नंबर एक बार आएगा। अगर 11 से कोई नंबर बन रहा है तो उसमें ऑड नंबर आ गया, 12 से बनेगा तो आएगा, 13 से बनेगा आएगा, 14 में आएगा, 15 में आएगा, 16 में आएगा। तो यहाँ 11 से कितने बन रहे हैं 6, 12 से कितने बन रहे हैं 6 6 6 6 6। तो 36 आउटकम फ्रॉम द रो 1। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं रो 2। ऑड नंबर कम्स वंस, 21 1 21 सब में आएगा, तो 6 आउटकम हो गए। 22 में 22 1 22 2 3 4 5 6, 21 22 1 22 3 22 5, 3 आउटकम्स। यहाँ से आपके पास रो 2 में पहले एलिमेंट पे इस जगह 6 आउटकम हुए, 22 में आपके पास 3 आउटकम हुए, 23 पे फिर 6 आउटकम हो गए, 24 पे फिर 3 आउटकम, 25 पे 6 और 26 पे फिर 3 आउटकम। सेकंड रो कंप्लीट। सेकंड रो में टोटल आउटकम हो गए 9 6 15 3 18 एंड 64 27 आउटकम फ्रॉम द रो 2। सही है, 9 6 15 18 24 27। रो 3 अगेन ओड स्टार्टिंग, देन अगेन 36। रो 3 में कितने होंगे 36। फिर रो 4 में अगेन ओड इवन, तो कितना हो जाएगा रो 4 पे 27। रो 5 पे अगेन 36। रो 7 पे 27। रो 6 भी चेक करके देख लो। 61 पे स्टार्ट करेंगे सब में 6 नंबर, 62 में 3, 63 में 6, 64 में 1 3 5 एटलीस्ट वंस। ठीक है, दीज आर द आउटकम्स इन फेवर ऑफ आवर इवेंट। इनको प्लस कर लें टोटल आउटकम्स को, तो कितना हो गया 36 72 और ये 108। यहाँ तो हो गया 108 प्लस ये आपका 81, 27 3 टाइम्स है तो 27 81, टोटल हो गया आपका 189 इन फेवर ऑफ एन इवेंट एंड द टोटल आउटकम्स आर 216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट को आप एज्यूम कर लें द प्रोबेबिलिटी, सपोज ये इवेंट ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए दैट इज 189 ओवर 216। और अभी 3 की टेबल से कट रहा है तो काट दें आप, 3 7 जा 3 2 जा, अगेन इट विल ब्रेक बाई 3 4 जा, अगेन 3 7 जा और 3 8 जा। द आंसर इज 7/8। तो स्टूडेंट्स, the question is important but it should be necessary that understood first properly। समझना बहुत ज़रूरी है कि आउटकम किस तरीके से बने। तो हमने पहले भी कहा था कि 3 डायस के आउटकम आप पहले डेवलप करें। तो डेवलप किस तरीके से करना है वो आप दोबारा समझ लें, बिकॉज whenever you don't understood how it should be developed then every time you are facing a problem। तो guys फर्स्ट आउटकम्स हाउ इट कैन फॉर्म, तो हमें पहले 36 आउटकम ऑन थ्रोइंग 2 डायस दैट आर लाइक दैट, एवरीबडी इज क्लियर दिस अबाउट दिस। नाउ ऑन थ्रोइंग द थर्ड डायस, तो थर्ड डायस पे फिर एक थर्ड आउटकम और आ जाएगा हर के साथ। पर कैसे चलेगा कि इस 11 आउटकम नंबर दिस 1 1 इज टू बी गेटिंग वेदर 1 वेदर 2 वेदर 3 वेदर 4 वेदर 5 वेदर 6। सो द 6 आउटकम ऑफ दिस 11 इज टू बी लाइक दैट। सेम 6 with the 12, same 6 with the 13, same 6 with the 14, same 6 with 15, same 6 with 16. Similarly, every element of these 36 having 6 element, the total elements are 216,
and out of these 216 the event A is to be represented as getting an odd number at least once. कम से कम एक बार odd number आना चाहिए. It means एक बार आएगा वो केसेस कंसीडर करोगे, दो बार आएगा odd number कंसीडर करोगे, तीन बार आएगा वो भी कंसीडर करोगे. तो आउटकम्स हमें बताने हैं हर रो में कितने कितने होंगे. तो 11 वाली में कितने हुए? 36 होंगे, राइट. 12 वाली में कितने होंगे? 27 होंगे. यहाँ पर आपने कहा 11 वाली में कितने होंगे? 6. 12 वाली में कितने होंगे? 6. तो इस फर्स्ट रो में आपके पास टोटल आउटकम दैट आर 36. समझ गए? सेकंड रो में यहाँ पर 6 आउटकम होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, पर इनमें 3 आउटकम ही होंगे. तो टोटल जो आउटकम होंगे आपके वो कितने होंगे? 27, राइट. सेम यहाँ पर 36 हो जाएंगे, यहाँ 27, यहाँ 36, यहाँ 27, और इन सब का सम करोगे तो टोटल आउटकम इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए दैट इज 189 एंड द टोटल आउटकम्स आर 3 डैश. So the 6 power 3, the result is 216. So the probability of an event A is described by 189 over 216. On simplification, what is the result you are getting? 7/8. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सबको प्रॉपर आ गया होगा, और रेस्ट 1 or 2 क्वेश्चन आर पेंडिंग दैट यू विल सॉल्व इन योर नोटबुक प्रॉपरली, एंड होप दैट we will go through with the next exercise in our next work. Example question number 12 we have done. 14 in a same manner the problem is solved. Exactly one of them the problem is solved. Exactly one meaning anyone solve the problem but second one is not solve the problem. Here or meaning plus, that the first node solved and second will solve. So in a same manner you solve the question. Students, do properly. In next class last 2-3 questions we will discuss. Thereafter we go through with the next exercise. Thank you very much. Do this work in your copy properly.